Well, sticking to politics over the parliament attack, politics has erupted over the parliament breach issue after opposition demanded BJP MP Pratap Simha's expulsion from Lok Sabha as both the intruders entered the parliament with visitor passes issued on the reference of Pratap Simha, who is an MP from Karnataka's Mysuru. Now, the opposition leaders are also demanding a statement from the Home Minister. Even yesterday, the opposition walked out from the parliament over this concern. Now, all the accused are in custody, and the BJP has claimed that some of the accused are INDI bloc supporters. On the other hand, the opposition has refused to buy this entire argument levelled by BJP and has accused the government of compromising on the whole security concern. Now, the opposition leaders are also planning to meet the president over this issue. Meanwhile, after the speaker held a meeting with floor leaders, it was decided to stop the entry of all the visitors for the time being. होम मिनिस्टर आने के बाद एक स्टेटमेंट दिलाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, sufficient information not came. That's why the Lok Sabha adjourned. Therefore, we request you kindly adjourn. Let Home Minister come and let us see what he has to say. क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं, आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो ये शख्स विजिटर गैलरी तक अपना ये स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? No doubt, it is a very, very serious security breach. And that breach was caused through a BJP MP from Mysore. And it happened in a big house on which the government spent crores and crores of rupees. And they told that the whole security aspects, everything is covered in this big building, the palatial, fortress-like building. But in this building, even the parliament members are not safe. We demand the discussion, and this is a serious lapse of security, not only for the people inside, that is the members of the Lok Sabha, but I think it's a serious breach of security for the nation. It is deplorable. The government is accountable. They should come out and say how it happened, why it happened. How could these people get inside? जो है संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। और जो है कुछ विरोधी ऐसा है जो इस घटना को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहा है। मैं कैसे कहूँगा कि संसद एक हमारे लिए जो है मंदिर जैसा है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर। इसके साथ जुड़े हुए किसी घटना को भी बढ़ चढ़ कर दिखाना भी नहीं चाहिए और झूठ और अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए। जो सच है वो जो है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आगे आ जाएगा। तो महुआ मैत्र का एक विषय, एक नंबर, एक पासवर्ड देश का नेशनल सिक्योरिटी का साथ जुड़ा दिया और एक्सपेल कर दिया। लेकिन आज जो एमपी इन लोगों को पास दिया था मैसूर का, उसका नाम हम लोगों ने स्पीकर से आज बुलाना कराया कि क्या नाम है, उस पर डिटेल्स दो। तो वो सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ। कोई सांसद, बहुत सांसद मर जाते थे। वो जो धुआं निकला है उसको साथ कोई पॉइजनस स्मोक होते थे तो वह बहुत कुछ हो जाते थे। तो ये भी देखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न कैसे इसको साथ जुड़ गए। As a concerned member of parliament, as a diligent member of parliament, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं। बात यह है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए।